کا آغاز اس اہم خبر کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر الحیان ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر وزارت خارجہ اور ایرانی سفارت خانے کے حکام نے استقبال کیا۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ پاک ایران کشیدگی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاک ایران کشیدگی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دونوں وزرائے خارجہ مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر الحیان ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پر وزارت خارجہ اور ایرانی سفارت خانے کے حکام نے استقبال کیا۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ پاک ایران کشیدگی سمیت دیگر امور پر تبادلہ کیا جائے گا، جبکہ دونوں وزرائے خارجہ مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ ایئرپورٹ پر وزارت خارجہ اور ایرانی سفارت خانے کے حکام نے استقبال کیا ہے۔ حسین امیر الحیان ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ نے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ پاک ایران کشیدگی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا اور دونوں وزرائے خارجہ مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے۔ اہم خبر یہ ہے کہ ایران کے وزرائے خارجہ حسین امیر الحیان ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پر وزارت خارجہ اور ایرانی سفارت خانے کے حکام نے استقبال کیا۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ پاک ایران کشیدگی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دونوں وزرائے خارجہ مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ 2017 والا پاکستان اب نظر نہیں آ رہا۔ ہم دنیا سے بہت پیچھے چلے گئے۔ ہماری حکومت ختم نہ کی جاتی تو کوئی بے روزگار نہ ہوتا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا سیالکوٹ جلسے سے خطاب کے دوران مزید یہ کہنا تھا، کون کہتا ہے کہ یوتھ نون لیگ کے ساتھ نہیں؟ نوجوان مستقبل کے معمار ہے۔ نوجوانوں کو 20 سالہ پروگرام کے تحت قرضے دیں گے، انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ سیالکوٹ باوفا لوگوں کا شہر ہے۔ سیالکوٹ موٹر وے ہم نے بنائی لیکن افتتاح کا موقع نہیں ملا۔ 2017 کا پاکستان جو میں چھوڑ کر گیا تھا وہ بھی آج مجھے نظر نہیں آتا۔ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں آج ہر ایک کے ہاتھ میں روزگار ہونا چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں کہ جو ہم نے پروگرام شروع کیے تھے وہ پروگرام جاری رکھنے کی ہمیں جو موقع دیا جاتا، ہماری حکومت نہ ختم کی جاتی، آج کوئی بھی اس جلسے میں شخص ایسا نہ ہوتا جس کے پاس باعزت روزگار نہ ہوتا۔ کتنا بڑا ظلم کیا اس قوم کے ساتھ۔ میں اپنے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو برداشت کر جاؤں گا اور کر رہا ہوں، لیکن جو ظلم آپ کے خلاف ہوا ہے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کون کہتا ہے کہ یوتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے؟ ان نوجوانوں کو جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں یا کوئی ہنر ہے، ان کو انشاءاللہ ہم قرضے دیں گے، 20 سال کے قرضے دیں گے، جو انشاءاللہ وہ اپنا خود کاروبار سیٹ کریں۔ اور یہ سارا کچھ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا، پیچھے نہیں جانا پڑے گا سارا کچھ، اور وہی حالات واپس لانے پڑیں گے، ترقی کی وہی رفتار دوبارہ واپس۔ لیکن ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ 8 تاریخ کو مسلم لیگ نون کامیاب ہو اور اس ملک کی خدمت کا ذمہ جو ہے وہ پھر اپنے کندھوں پہ اٹھائے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں مگر کبھی لڑائی کی بات نہیں کی۔ بھولے بھٹکے لوگوں کو سمجھائیں جو ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ ہب جلسے سے خطاب کے دوران ان کا مزید کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہب کا بجٹ 4 بار بڑھ چکا ہے مگر یہاں نظر نہیں آتا۔ شاید دوستوں کی جیب میں نظر آتا ہو۔ ہب کو بھی کراچی جیسا ہونا چاہیے۔ امن و امان کی صورتحال بہتر کریں تو کراچی کے سرمایہ کار خود یہاں آئیں۔ میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ صرف ان بھولے بھٹکے دوستوں کو سمجھائیں جو بندوق پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، جو ہتھیار کا کام لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ سوچیں کیا ذاتی نہیں ہوئی، مگر پیپلز پارٹی نے کبھی ہتھیار کی بات نہیں، کبھی لڑنے کی بات نہیں۔ ہاں، سڑکوں پہ لڑنے کی بات کی،
जलसे करने की बात की, जलसे में आने जाने की बात की। जलसे 18वीं तदबीर मैंने दी है, मेरा ख्याल है 15 साल तो उसको हो गए हैं। आपका बजट 4 दफ़ा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है। पता नहीं फिर हमारे दोस्तों की जेबों में नजर आता हो तो आओ, यहाँ नजर नहीं आता। हम हब को आगे बढ़ाने की, हब को आगे चलाने की और हब को संभालने की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इतना कोई बड़ा काम नहीं है। कराची के इन्वेस्टर्स खुद कर दे, अगर सिर्फ मैं लॉ एंड ऑर्डर यहाँ दे सकूं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर एक बार फिर कड़ी तनकीद। उनका कहना था कि मुखालफिन कहते हैं नून लीग बाहर नहीं निकलती, और देख ले क्या नून लीग सियालकोट में कमरे में जलसा कर रही है। अजीमुशान जलसे ने साबित कर दिया कि सियासी मुखालफिन का जुलूस निकल गया। सियालकोट जलसे से खिताब करते हुए उनका मजीद ये भी कहना था, एक सियासी मेहरबान जलसों में किसान कार्ड और मजदूर कार्ड दिखा रहे हैं, गौर से देखें तो वो किसी फुटबॉल मैच के रेफरी लगते हैं। 8 फरवरी को अवाम येलो कार्ड दिखाकर उन्हें बाहर निकाल देंगे। 8 फरवरी का सूरज नून लीग की फतह लेकर तुलू होगा, पाकिस्तान की फतह होगी। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मुखालफिन ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून बाहर निकल के जलसे नहीं कर रही, नवाज शरीफ बाहर निकल के जलसे नहीं कर रहा, तो क्या आज सियालकोट में हम किसी कमरे में जलसा कर रहे हैं? और ये जलसा इस बात की गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी को सियासी मुखालफिन का जुलूस निकल जाएगा। एक सियासी मेहरबान है, वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, कोई फलां कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। गौर से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। ये अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा। 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग नून का सूरज होगा, पाकिस्तान की फतह का सूरज होगा, और नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल करम से चौथी बार वजीर आजम का सूरज शुरू होगा इंशाअल्लाह। जो समझते हैं कि चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे, उनकी गलत फहमी है। उन्हें मालूम नहीं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके तौबा की थी, अब वही काम शुरू कर दिए हैं। पीटीआई के प्लांटेड लोगों की वजह से कारकुनों को नुकसान हुआ और इंतखाबी निशान छिन गया। ये लोग तैयारी के बगैर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और फिर आंसू बहाते हैं। 8 फरवरी को जज्बाती होने की जरूरत नहीं, होशियार होने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी में सलाहियत है कि वो सबको साथ लेकर चल सकती है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब। एक जमात ने वो पुरानी सियासत अपनाया है जिससे उन्होंने तौबा कर दिया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हुए। एक जमात ने अपना ही वोट का इज्जत का नारा भूल के वही पुरानी सियासत अपनाई है, और वो समझते हैं कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। मैं आपसे पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि ये इनका गलत फहमी है, ये इनकी गलत फहमी है। इनको ये समझ नहीं आता कि असल में ताकत का सरचश्मा अवाम है। आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जज्बाती कारकुन को समझाएं कि हम ये जद्दोजहद 3 नस्लों से लड़ते आ रहे हैं, हम मुकाबला करना जानते हैं। इनको ये समझ होना चाहिए कि ये जो आपका निशान नहीं मिला, ये अपने लोगों का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। पहले एक दिन उनका एक ओहदेदार उठता है और सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान को गालियां सुनाते हैं। अगले दिन उनका पेशी होता है तो उनकी वही प्लांटेड लोग जाते हैं, तैयारी के बगैर जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं, फिर मगरमच्छ
सच के आंसू रोते हैं कि हमारा निशान छीना गया। नहीं, छीना नहीं, आपकी नाकामी की वजह से आपने अपने पार्टी को, अपने कायद को, अपने पार्टी के कारकुन को नुकसान पहुंचाया। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। PTI ने भी अपनी इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। हुकूमत में आए तो आइन में तरमीम करेंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्ट अवामी राय से होगा। वज़ीर आज़म चंद MNAs के वोट से नहीं बनेगा। बैरिस्टर गौहर खान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल करेंगे, सेनेट की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात का सामना है, हमारे हकूक़ की खिलाफवर्जी की जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। जेल में हमारे 1 से ज़ायद गैर कानूनी ट्रायल चल रहे हैं। हक़ के दिफा नहीं दिया जा रहा। उन वकला को नामजद किया जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश हो चुके हैं। मुल्जिम की मर्जी के बगैर वकील मुकर्रर करना आइन की खिलाफ वर्जी है। शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। सोसाइटी ने जो अप एंड डाउन्स देखे हैं, जितने लोगों को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारते हुए जिस तरीके से इनजस्टिस का सामना करना पड़ा, इसलिए अवामी आवाज़ का तकाजा है कि एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। हमारे आईनी तरमीम में एक शिक ये शामिल होगी कि हम आइंदा इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्टली अवाम से कराएंगे। साथ ही साथ हम असम्बली की मुद्दत जो 5 साल की है, हम इसको कम करके 4 साल करेंगे। इसी तरह सेनेट की मुद्दत जो 6 साल है इस वक्त, इसको कम करके हम 5 साल के लिए करेंगे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। हमसे बल्ला लिया गया, हमारे प्रपोजल सेकेंडर रोके गए, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए टेक्निकल बुनियादों पे। किसी अक्यूज के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ वकील अपॉइंट करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके सख्त अल्फाज में हम शदीद मजम्मत करते हैं। मौसम की बात करें तो शुमाली इलाकों और आज़ाद कश्मीर में तवील खुश्क साली ख़त्म हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। पहाड़ी चोटियों और वादियों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रिपोर्ट देखिए। तवील खुश्क साली का खात्मा। मुल्क के शिमाली इलाकों में रवा मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। कालाम, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान, गलियात और दीगर बला इलाके सफेद चादर में छुप गए। सियाहती मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। 3 माह के वक्फे के बाद शांगला के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई। बशाम, अलपुरी, शाहपुर, मारतोंग, चकेसर में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दीर शहर और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। लवारी टनल, गवालदी, कुबरात और शाही समेत बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जिला खैबर की वादी की राह में भी पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद जम्मू और कश्मीर के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो गया। वादी अलीपा, वादी नीलम और पीर चनासी के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बालाई वादी नीलम, शारदा, कील, केल, ग्रेस में बर्फबारी, जबकि जेरी नीलम, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, 8 मकाम और मुल्हिका इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। एक जानिब सर्दी में इजाफा हुआ तो दूसरी जानिब तवील खुश्क साली के खात्मे पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 दिन तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। टूरिज्म अथॉरिटी और SDMA ने हिदायत की है कि सयाह बर्फबारी वाले मकामात पर जाने से कबल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि बाज़ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर जो बाइडन पर बरस पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज पर हमला जो बाइडन की नाकामियों का नतीजा है। अमरीका के लिए ये हमला खौफनाक और ख़तरे की घंटी है। तीसरी आलमी जंग होने जा रही है। अगर यह हुकूमत में होता तो ना रूस यूक्रेन पर हमला करता, ना 7 अक्टूबर को हमास का हमला होता। जो बाइडन की कमज़ोर पॉलिसियों की वजह से अमेरिका ने सरेंडर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक गजा में जंग बंदी का मुतालबा नहीं किया।